Hello students, this is the third lecture on clauses, and in my previous lectures I have taught you principal clause, subordinate clause and coordinate clause. Besides that, I have also taught you what is a complex sentence and what is a compound sentence. In the end of the previous lecture, I asked you some questions. There were 10 sentences which you were asked to answer in the comment box, and you had to tell about the sentences whether they were complex sentences or compound sentences. But I think no one has answered about it. Now I want you to answer it. Watch the second lecture of clauses and then answer. In this lecture I would teach you how many types of subordinate clauses are there, and as you can see, there are three types of subordinate clauses. The first one is noun clause. Second one is adjective clause or relative clause. Third one is adverb clause. We will read them one by one. And the first one is noun clause. These three clauses are subordinate clause. These are the parts of subordinate clause. So noun clause is also a subordinate clause. Let us read what is a noun clause. This subordinate clause functions as a noun in a sentence. ये जो सबॉर्डिनेट क्लोज होता है, ये वाला जो सबॉर्डिनेट क्लोज होता है, ये सेंटेंस में नाउन का काम करता है. और नाउन क्या काम करती है सेंटेंस में? या तो सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का. तो जो भी क्लोज सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे वो नाउन क्लोज होता है. एंड if you are facing any kind of confusion in understanding or in distinguishing the noun clause, you can use this trick. What is the trick? It can be replaced by something or it. Means if you erase the noun clause, if you erase the subordinate clause and put it or something in place of it, the sentence will still be meaningful. Let us take some examples. I know what you have bought. Look at this sentence. Here we have subordinate clause. This is a subordinate clause. And if you have watched the previous lectures of mine, you must know how it is a subordinate clause. Because it is beginning with what? I told you, if a clause begins with subordinating conjunction or with any WH family word, that clause is a subordinate clause. So what से begin हो रहा है ये, तो ये एक subordinate clause है. But I have also told you subordinate clause तीन टाइप का होता है: noun clause, adjective clause, adverb clause. So ये noun, adverb और adjective में से कौन से वाला है? तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर noun clause होगा तो ये something से या it से रिप्लेस हो जाएगा. देखते हैं, इसको हटा करके अगर हम लिख दें यहाँ पर I know it. I know it. मैंने समथिंग व्हाट यू हैव बोट को हटा दिया और उसकी जगह पे लिख दिया आई नो इट. क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? मैं इसे जानता हूँ, कंप्लीट है. अब आप कहोगे कि क्या है ये जिसको जानता जानता हूँ मैं. अभी मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूँ यहाँ पर. आई मेट हिम. आई मेट हिम व्हेन ही वॉज गोइंग टू स्कूल. आई रिपीट द सेंटेंस. आई मेट हिम when he was going to school. I met him when he was going to school. Look at this sentence.
अब ये सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसमें भी सबऑर्डिनेट क्लोज है, व्हेन से स्टार्ट हो गया, व्हेन के बाद जितना भी सेंटेंस है हमारा सारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज तीन टाइप का होता है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब। तो उन तीनों में से कोई एक सबऑर्डिनेट है ये। तो अब इसको हटा करके हम समथिंग या इट रखें और फिर भी ये सेंटेंस मीनिंगफुल रहे तो ये नाउन क्लोज है, अदरवाइज नहीं है। मीन्स जिसको हम हटाएंगे वो नाउन क्लोज है। व्हेन से लेकर के स्कूल तक नाउन क्लोज है या नहीं, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा आई मेट हिम समथिंग, पूरे को हटा के समथिंग रख दिया, आई मेट हिम समथिंग। लग रहा है आपको मीनिंगफुल सेंटेंस? मैं उससे कुछ मिला, नहीं लग रहा मीनिंगफुल। आई मेट हिम इट, आई मेट हिम इट, नहीं लग रहा है। जैसा इसमें लग रहा था ना, आई नो इट, बिल्कुल फिट बैठ रहा, आई नो इट, मैं इसे जानता हूँ, आई नो समथिंग, मैं कुछ जानता हूँ, फिट बैठ रहा है इस वाले सेंटेंस में। आई नो इट या आई नो समथिंग, पूरे सबऑर्डिनेट को हटा के हम समथिंग या इट रख रहे हैं तो मीनिंगफुल रह रहा है सेंटेंस, बट इसमें नहीं रह रहा है। आई मेट हिम समथिंग नहीं रह रहा है। तो ये वाला जो है, जो मैंने अभी रेड में, रेड स्याही से इंक से लिखा है, वो वाला सबऑर्डिनेट क्लोज तो है बट नाउन क्लोज नहीं है, क्योंकि इसको हटा के समथिंग फिट नहीं किया जा सकता और ना ही इसको हटा के इट फिट किया जा सकता है। तो ये रेड इंक वाला नाउन क्लोज नहीं है, ये वाला नाउन क्लोज है। फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा, उसमें ये पार्ट नाउन क्लोज है। सबऑर्डिनेट तो है लेकिन सबऑर्डिनेट में से नाउन वाला है ये। लेट अस टेक द सेकंड एग्जांपल। कैन यू टेल मी वाई योर ब्रदर इज क्राइंग। सो आप अच्छे से पहचान सकते हो कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। कैन यू टेल मी वाई योर ब्रदर इज क्राइंग। अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और इसको हटा के अगर हम समथिंग रखें या इट रखें और फिर भी सेंटेंस मीनिंगफुल रहे, तो हमने जो हटाया है वो नाउन क्लोज था। मीन्स ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर नाउन क्लोज है तो इसकी जगह पे हम समथिंग या इट रख दें, तब भी सेंटेंस मीनिंगफुल रहेगा। रख के देखें, कैन यू टेल मी समथिंग, बिल्कुल ठीक लग रहा है, कैन यू टेल मी समथिंग। कैन यू टेल मी इट, लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो इसमें इट मीन्स ये जो मैंने इरेज किया है ये वाला पार्ट नाउन क्लोज था, तभी तो इसकी जगह पे समथिंग या इट फिट हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, दे टोल्ड मी दैट दे वर स्टडिंग। हेयर दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यू कैन check the list of subordinating conjunction again that was given in my first lecture। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट उसमें है और आप उसको चेक करो तो आपको पता लग जाएगा कि दैट जो कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ये काम करती है तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज को रिप्रेजेंट करती है, उससे पहले आती है। ओके, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये वाला क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज है। बट सबऑर्डिनेट क्लोज तो तीन टाइप का होता है, नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को रिलेटिव भी बोलते हैं, और थर्ड एडवर्ब। अब ये नाउन है या नहीं कैसे पता लगे, समथिंग रख के देख लेते हैं। दे टोल्ड मी समथिंग, उन्होंने मुझे कुछ बताया, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इट मीन्स ये अंडरलाइन क्लोज सम जो है वो समथिंग से रिप्लेस हो रहा है, तो ये वाला क्लोज नाउन क्लोज है। पूरा सेंटेंस नाउन क्लोज नहीं है, सिर्फ ये वाला सबऑर्डिनेट क्लोज वाला जो पार्ट है ये नाउन क्लोज है, तभी तो इसकी जगह पे समथिंग फिट हो गया। और समथिंग भी तभी फिट हुआ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। लेट अस टेक द फोर्थ एग्जांपल। दे वांटेड टू से दैट दे वर टायर्ड। अब ये दैट से स्टार्ट हो रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। दैट दे वर टायर्ड, दे वांटेड टू से दैट दे वर टायर्ड। तो अब यहाँ पर रख के देख लेते हैं, दे वांटेड टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहते थे, स्टिल इट इज़ अ नाउन क्लोज क्योंकि समथिंग से रिप्लेस हो रहा है। आई थिंक इट इज़ क्लियर दैट noun clause can be replaced by something or adjective and adverb clause cannot be replaced by something। Let us take some more examples। I want to give you some more examples and I would like to give it here।
वट ही डज फॉर हिज लिविंग, what he does for his living is uncertain, what he does for his living is uncertain. look at this. अब आपको पहचानना है कि यहाँ पे कौन से वाला पार्ट सबऑर्डिनेट है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये वट से जो स्टार्ट हो रहा है ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, यहाँ तक वट ही डज फॉर हिज लिविंग ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, वट से स्टार्ट हो रहा है। और इज अनसर्टेन प्रिंसिपल क्लोज है, बट ये एक ऐसा प्रिंसिपल क्लोज है जिसका सब्जेक्ट जो है ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज इसका सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि नाउन क्लोज या तो सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है। इस सेंटेंस में नाउन क्लोज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बाकी के जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उनमें सभी में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और क्या इसको हम समथिंग से रिप्लेस कर सकते हैं या इट से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, तभी तो ये नाउन क्लोज है, क्योंकि इसको रिप्लेस कर सकते हैं इसीलिए नाउन क्लोज है। अगर नहीं कर सकते तो ये नाउन क्लोज होता ही नहीं। नाउन क्लोज है इसीलिए कर सकते हैं। इट इज़ अनसर्टेन, पूरे को हटा के मैंने इट रखा। इट इज़ अनसर्टेन, सेंटेंस मीनिंगफुल है। समथिंग इज अनसर्टेन, समथिंग रखने से भी मीनिंगफुल रह रहा है सेंटेंस, और इट रखने से भी रह रहा है। तो इट मीन्स जिसको हटा करके हम इट रख रहे हैं या समथिंग रख रहे हैं वो नाउन क्लोज है, और यहाँ पर वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो नाउन क्लोज सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का। मैंने पिछले जो चारों एग्जाम्पल दिए थे वो सभी, उन सभी में ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे सभी में सब्जेक्ट का काम, सॉरी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, बट ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया था इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा था। तो इसको पहचानने के लिए आपको सिर्फ यही ट्रिक करनी है। पहले तो यही देख लो, आप सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्लोज तो वो नाउन क्लोज है, ऑब्जेक्ट का कर रहा है तो भी वो नाउन क्लोज है, और फिर भी पता नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली आपको समथिंग या इट रख करके देखना पड़ेगा। लेट अस टेक डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव क्लोज नाउ। एडजेक्टिव क्लोज इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव क्लोज। आपने एडजेक्टिव ज़रूर पढ़ा होगा और आपको पता होगा एडजेक्टिव जो होता है वो यूज़ होता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए। रिलेटिव क्लोज जो होता है वो एडजेक्टिव क्लोज का ही दूसरा नाम है। तो ये क्या काम करता है? जो ये वाला जो सबऑर्डिनेट क्लोज है तो ये भी सबऑर्डिनेट क्लोज। ये सबऑर्डिनेट क्लोज, दिस सबऑर्डिनेट क्लोज फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, इन द सेंटेंस। यहाँ पर द इन अ सेंटेंस जरूरी था, आई फॉरगॉट टू पुट इट हेयर। दिस सबऑर्डिनेट क्लोज फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। इट ऑलवेज बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? हु, हुज, हुम, दैट और विच। अब आपको ये वाले प्रोनाउन थोड़े से अगर नहीं आते हैं तो आप प्रोनाउन वाला चैप्टर पढ़ सकते हो। आपको डेफिनेटली ये चीज़ें थर्ड फोर्थ या फिफ्थ क्लास में पढ़ाई गई होंगी और आपको याद भी होंगी। हु का मीनिंग क्या होता है, हुज का मीनिंग क्या होता है, हुम का क्या होता है। हु सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, हुज पॉजेसिव केस होता है, और हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। और दैट जो है, दैट और विच दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर जाते हैं बहुत जगह पर, निर्जीव चीज़ों के साथ भी और सजीव के साथ भी, दोनों के साथ यूज़ हो जाते हैं ये। और इनको यूज़ करने के लिए जो रूल्स हैं, अगर आपको डाउट है तो आपको इनके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल में अगर नॉलेज चाहिए तो आप प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है। रिलेटिव एडवर्ब व्हेन, वेयर, व्हाई, इनसे किसी एक से स्टार्ट होता है एडजेक्टिव क्लोज। लेकिन सिर्फ इतना जानने से आप रिलेटिव प्रोनाउन को या एडजेक्टिव, सॉरी रिलेटिव क्लोज को या एडजेक्टिव क्लोज को नहीं पहचान पाओगे। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और वो क्या है? इट इज़ रिटन हेयर। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। एंटीसीडेंट मीन्स इससे पहले आने वाली नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको, ये वाला क्लोज स्टार्ट होने से पहले
पहली बात तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा या रिलेटिव एडवर्ब से, लेकिन इसके स्टार्ट होने से जस्ट पहले या तो कोई नाउन मिलेगी या कोई प्रोनाउन मिलेगा, और उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही पूरा क्लोज बात करेगा, किसी और चीज के बारे में बात ही नहीं करेगा। आई रिपीट, ये क्लोज या तो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, हु, हुज, हुम, दैट या विच से, या तो इनमें से किसी एक से स्टार्ट होगा, या इनमें से तीनों में से किसी एक से स्टार्ट होगा, और इनसे जस्ट पहले कोई नाउन या प्रोनाउन लिखी होगी इससे जस्ट पहले, और उसी के बारे में पूरा क्लोज बात करेगा, पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज उसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करेगा। लेट अस टेक एग्जांपल्स। आई हैव सोल्ड द कार, देखो ये आ गया विच, रिलेटिव प्रोनाउन में से आई टोल्ड यू, इनमें से एक मिलेगा, विच आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, और इससे जस्ट पहले एक नाउन है, देयर इज अ नाउन, कार। और अभी देखना, ये वाला पूरा क्लोज इस कार के बारे में ही बात करेगा। आई हैव सोल्ड द कार विच आई बोट लास्ट मंथ, मैंने वो कार बेच दी है जो मैंने पिछले महीने खरीदी थी। अब सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें हम, और ये कहें जो मैंने पिछले महीने खरीदी थी, जो मैंने पिछले महीने खरीदी थी, क्या खरीदी थी भाई, कार, कार के बारे में बात कर रहा है पूरा का पूरा क्लोज। यही मैंने बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा और ये पूरा क्लोज उस अपने से पहले आई हुई नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करेगा। देन इट इज़ अ रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि ये कार के साथ रिलेशन बना रहा है, कार की विशेषता बता रहा है, दैट्स वाई इट इज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज। लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, द पेन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिलेटिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज बीच में आ जाता है और प्रिंसिपल क्लॉज के दो टुकड़े कर देता है, लाइक इन दिस सेंटेंस, द पेन हैज़ बीन लॉस्ट, द पेन हैज़ बीन लॉस्ट, वो पेन खो दिया गया है। कौन सा पेन, विच यू गेव मी यस्टरडे, देखो रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है विच, और विच से जस्ट पहले एक नाउन आई हुई है, और इस नाउन इस पेन के बारे में ही पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज बात कर रहा है। यहाँ तक यस्टरडे तक है सबऑर्डिनेट क्लोज, और प्रिंसिपल क्लोज के दो पार्ट करके बीच में सबऑर्डिनेट क्लोज डला हुआ है, और ये कौन से वाला है, एडजेक्टिव क्लोज। ये पेन की विशेषता बता रहा है, कौन सा पेन खोया है, जो तुमने मुझे कल दिया था। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते, द पेन हैज़ बीन लॉस्ट विच यू गेव मी यस्टरडे, द पेन हैज़ बीन लॉस्ट विच यू गेव मी यस्टरडे। अब सेंटेंस तो स्पोकन में तो बहुत सारे लोग इस तरह से यूज कर लेते हैं, बट ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव क्लोज का रूल है कि वो अपने से पहले जिस नाउन की विशेषता बताएगा ना, उस नाउन के तुरंत बाद आना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे आया हुआ है। अलग रखोगे आप तो डेफिनेटली सेंटेंस तो मीनिंग दे रहा है, लोग समझने वाले समझ जाएंगे आप क्या कह रहे हो, लेकिन रिटन फॉर्म में ऐसे लिखना गलत होता है, ग्रामेटिकली ये गलत है, क्योंकि रूल है एडजेक्टिव क्लोज का या रिलेटिव क्लोज का कि ये अब जिस नाउन की विशेषता बताता है, जिस नाउन को रिलेट करता है, उस नाउन के जस्ट आफ्टर आना चाहिए। तो इसीलिए प्रिंसिपल क्लोज को दो टुकड़ों में बांट करके हमने रिलेटिव क्लोज को बीच में डाला है, और आपको बहुत सारे सेंटेंसेस जैसे देखने को मिलते होंगे। सो दिस इज आर सबऑर्डिनेट क्लोज, दिस वन इज रिलेटिव क्लोज, और ये पेन के साथ रिलेट कर रहा है, इसीलिए ये एक रिलेटिव और या एडजेक्टिव क्लोज है। नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज गिव मी द ऑरेंज, प्लीज गिव मी द ऑरेंज दैट इज लाइंग ऑन द टेबल। देखो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और यहाँ ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, बट दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी तो है, लेकिन हो सकता है ये रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लोज ना हो। देख लेते हैं इससे पहले नाउन आई हुई है या नहीं आई हुई है, ऑरेंज, और क्या ये पूरा क्लोज इस ऑरेंज के बारे में ही बात कर रहा है। प्लीज़ गिव मी द ऑरेंज, कृपया करके मुझे वो ऑरेंज दे दो, दैट इज़ लाइंग ऑन द टेबल, जो टेबल पे पड़ा है, जो टेबल पर पड़ा है, क्या पड़ा है टेबल पे, ऑरेंज। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्लोज ऑरेंज की ही बात कर रहा है जो टेबल पे पड़ा है, दैट्स व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लोज। नेक्स्ट एग्जांपल, द बॉय, the boy whose father came here yesterday is missing. Once again, principal clause is split into parts. The boy is missing, लड़का गुम हो गया है। कौन सा लड़का, whose father
केम हेयर यस्टरडे, ये हुज रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो है हमारा रिलेटिव क्लोज है, क्योंकि ये किसको रिलेट कर रहा है, बॉय को, नाउन को। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट we have three more examples. He who climbs too high is liable to fall. Try to find out the relative adverb or relative pronoun here. Yes, I think it is clearly visible. Who जो है वो relative pronoun है, और इससे स्टार्ट हो गया हमारा क्लोज who is liable to fall. Who climbs too high, यहाँ तक who climbs too high, यहाँ तक हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। पर क्या इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है? यस, दिस इज द प्रोनाउन ही जो है वो प्रोनाउन है, और इसी के बारे में बात कर रहा है। हु क्लाइम्स टू हाई, ही वो जो ज़्यादा ऊंचा चढ़ता है, इज लाइबल टू फॉल। प्रिंसिपल क्लोज है हमारा ही इज लाइबल टू फॉल, और बीच में हमने सबऑर्डिनेट क्लोज फिट किया है। जनरली ऐसा तभी होता है, हम बीच में जब कोई सबऑर्डिनेट क्लोज फिट करते हैं और प्रिंसिपल क्लोज को दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, तो केवल एडजेक्टिव क्लोज ही करता है ऐसा, और कोई क्लोज ऐसा करता ही नहीं है। हाँ, एक नाउन क्लोज करता है, नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन में ऐसा होता है, और मैं उसका एग्जांपल आपको दे देता हूँ। द न्यूज़, द न्यूज़ दैट he has failed is true. The news is true, वो खबर सच है। विच न्यूज़ इज ट्रू, कि वो फेल हो गया है। ये वाला जो है नाउन इन अपोजिशन है, नाउन इन अपोजिशन। समथिंग इज ट्रू, यहाँ पर हम बोल रहे हैं समथिंग इज ट्रू। व्हाट इज ट्रू? द न्यूज़, समथिंग इज ट्रू। तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि ये एडजेक्टिव क्लोज नहीं है। कैसे नहीं है? एडजेक्टिव क्लोज में जब दैट आता है तो उसका मीनिंग जो होता है, जो, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग जो नहीं आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको ओरली देता हूँ। द न्यूज़ दैट यू टोल्ड मी यस्टरडे, द न्यूज़ दैट यू टोल्ड मी यस्टरडे इज़ ट्रू। वो खबर जो तुमने मुझे कल सुनाई थी सच है। द न्यूज़ दैट यू टोल्ड मी यस्टरडे इज़ ट्रू। अब इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखो तो इसमें दैट का मीनिंग आ रहा है जो, लेकिन इस सेंटेंस में जो यहाँ पर रिटन है इसमें नहीं आ रहा है। द न्यूज़, वो खबर की, ही हैज़ फेल्ड, वो खबर कि वो फेल हो गया है, इज़ ट्रू, सच है। अब यहाँ पर जय जो दैट जो है उसका कहीं भी जो मीनिंग नहीं आएगा। द न्यूज़, जो वो फेल हो गया है, गलत है, जो नहीं आ रहा है इसका। तो एडजेक्टिव क्लोज का जब काम करेगा दैट वाला रिलेटिव सबऑर्डिनेट क्लोज, तो वो दैट का मीनिंग जो में देगा, की में नहीं देगा। यहाँ पर दे रहा है की, हिंदी करके देखो आप, तो ये नाउन इन अपोजिशन है। इसीलिए ये वाला सेंटेंस बीच में तो आया है, प्रिंसिपल क्लोज को दो पार्ट में स्प्लिट तो किया है, सिर्फ यही है एक नाउन क्लोज जो करता है प्रिंसिपल क्लोज को दो पार्ट्स में स्प्लिट। अदरवाइज सिर्फ एडजेक्टिव क्लोज और रिलेटिव क्लोज ही है जो प्रिंसिपल क्लोज को दो पार्ट्स में स्प्लिट करके बीच में फिट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हेयर हु हेल्प देमसेल्व्स। अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, हु से, और इससे पहले एक प्रोनाउन भी है दोज। क्या ये इन दोज के बारे में बात कर रहा है? भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। जो दोज के बारे में बात कर रहा है, तो ये रिलेटिव क्लोज है, और ये किसको डिफाइन कर रहा है? प्रोनाउन को। पांचवा और छठा दोनों एग्जाम्पल प्रोनाउन को डिफाइन कर रहे हैं, नाउन को नहीं। उससे पहले वाले चारों एग्जाम्पल मैंने नाउन के दिए थे, अभी ये मैंने प्रोनाउन के दिए। आई हैव रेड द रिपोर्ट दैट और विच यू सेंट मी। मैं वो रिपोर्ट पढ़ चुका हूँ जो तुमने मुझे भेजी थी। तो ये रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन दोनों लग सकते हैं यहाँ पर, और क्लियर है
कि ये वाला जो है रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है और इस नाउन रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज है। आई थिंक रिलेटिव क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज इज ऑल्सो क्लियर। लेट अस टॉक अबाउट एडजेक्टिव क्लोज कितने टाइप का होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। मीन्स अगर रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे तो वो डिफाइनिंग होता है, और अगर डिफाइन ना करे तो नॉन डिफाइनिंग होता है। दिस इज द डेफिनेशन। बट मैं बताता हूँ, अगर कोई ऐसी डेफिनेशन दे, अगर कोई ऐसी जानकारी दे जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो फालतू है, हम पहले से ही उस चीज़ को जानते हैं और उस जानकारी के कारण कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो नॉन डिफाइनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द मैन हु हेल्प्ड यू। अब यहाँ पर हु हेल्प्ड यू, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे जस्ट पहले एक नाउन है, तो ये एडजेक्टिव क्लोज है, ये रिलेटिव क्लोज है। बट रिलेटिव क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज दो टाइप का होता है, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। अब ये डिफाइनिंग वाला है या नॉन डिफाइनिंग वाला? ये डिफाइनिंग वाला है। क्यों? डिफाइनिंग वाले को आप अलग नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। अगर आपने हटा दिया तो डेफिनेटली सेंटेंस मीनिंगलेस रह जाएगा। कैसे? मान लेते हैं हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब मैंने सेंटेंस छोड़ा, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। कौन सा आदमी भाई? इनकम्प्लीट लग रहा है, लग रहा है इनकम्प्लीट, बिल्कुल लग रहा है। अब ये डिफाइनिंग है क्योंकि एक ऐसी जानकारी दे रहा है जिसके बगैर काम नहीं चल रहा है, डिफाइन कर रहा है। ये मीन्स उस मैन को डिफाइन कर रहा है, कौन सा आदमी, उसके बारे में बता रहा है, जिससे हमें अधूरी जानकारी पूरी होती नज़र आ रही है। मीन्स हम पूरी हो जाती है, हमें उस आदमी के बारे में पूरा पता चल जाता है। तो ये जो डेफिनेशन दे रहा है ये वाला सबऑर्डिनेट क्लोज, वो इस तरह से डिफाइन कर रहा है कि हमारा क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि कौन सा आदमी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको पता लग जाएगा। सचिन तेंदुलकर हु ओन्स मैनी लग्जूरियस कार्स, ये वाला रिलेटिव क्लोज है, सचिन के बारे में बता रहा है। सचिन के बारे में नाउन को डिफाइन कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन हु से स्टार्ट हो रहा है। बट ये कोई ऐसी जानकारी नहीं दे रहा है जो बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको हटा दें तो भी हम हमारा काम चल जाएगा। सचिन तेंदुलकर इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का चीफ गेस्ट सचिन तेंदुलकर है। अब ये बात बताना कि उसके पास बहुत सारी कार्स हैं, फालतू की इन्फॉर्मेशन है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है। ये वाला जो एडजेक्टिव क्लोज है, जो अंडरलाइन है, ये नॉन डिफाइनिंग है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए जब नॉन डिफाइनिंग क्लोज सेंटेंस में आता है तो उसके स्टार्टिंग से एंडिंग में कोमे के बीच में रखा जाता है। देखो ये कोमा दिखाई दे रहा है आपको। तो नॉन डिफाइनिंग क्लोज जब होता आता है तो वो कोमाज से सेपरेट कर दिया जाता है, और ये ऐसी जानकारी देता है जो अननेसेसरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द बॉय हुम यू सोल्ड योर फोन इज़ अ चीटर। अब आप इसमें ध्यान से देखो, हुम से रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लोज, और ये यहाँ फ़ोन तक चला, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, और इससे जस्ट पहले एक बॉय है, नाउन है, तो ये एडजेक्टिव क्लोज है। द बॉय इज़ अ चीटर, वो लड़का चीटर है। कौन सा? जिसको तुमने अपना फ़ोन बेचा। ये हुम यू सोल्ड योर फोन पूरा का पूरा क्लोज बॉय के बारे में बात कर रहा है, और कोई ऐसी जानकारी दे रहा है जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रही है। ये जानकारी ज़रूरी है, फालतू की जानकारी नहीं है। तो ये डिफाइनिंग है। ये कौन से वाला रिलेटिव क्लोज है? ये डिफाइनिंग है, क्योंकि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये। अगर इसको हटा दें, हम सिर्फ इतना बोलें द बॉय इज़ अ चीटर, तो इनकम्प्लीट लग रहा है। तो इट मीन्स जो हमने इरेज किया है वो पार्ट नेसेसरी था। तो ये रिलेटिव क्लोज डिफाइनिंग था, डिफाइनिंग है। नेक्स्ट में देख लो, आपको नॉन डिफाइनिंग का एग्जांपल मिलेगा। गुंजन्स फादर, गुंजन के फादर हु लिव्स इन चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ में रहते हैं। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है और फादर को डिफाइन कर रहा है, नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो रिलेटिव क्लोज तो है, क्लियर हो रहा है, एडजेक्टिव क्लोज तो है। बट क्या ये कोई ऐसी जानकारी दे रहा है जो नेसेसरी है? गुंजन के फादर डॉक्टर हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, हु लिव्स इन चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ में रहते हैं, तो फालतू की जानकारी है। गुंजन के फादर डॉक्टर हैं, हमें समझ में आ रहा है, तो ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन है तो एडजेक्टिव क्लोज।
है तो एडजेक्टिव ही, क्योंकि हु से स्टार्ट हो रहा है और फादर को रिलेट कर रहा है, रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज तो है ये। बट ये नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग में से कौन से वाला है? ये नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अननेसेसरीली डिफाइन कर रहा है, इसीलिए ये नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है। आई थिंक relative clause or adjective clause is also clear. I taught you noun clause and adjective clause in this lecture, and if you still have any doubt you can ask in the comment box. In the next lecture I would like to teach you adverb clause, and that would be the last part of clauses. Okay students, bye, take care.